देखिए हमारे पास जो है ना, ओके लेट्स स्टार्ट. So we get p square equal to p nu contravariant and covariant, which is equal to m square. So here this is operator. So when we apply on any wave function, it means that we are considering wave function phi equal to, here phi is the wave function, scalar wave function. सर इसको थोड़ा सा जूम कर दे. It's very clear. सर अब ठीक हो गया. थैंक यू. Okay. सर So ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर नहीं आएगा? no, e square minus p square is also equal to p square. Okay, because e square minus p square is equal to capital P square. Okay, that is actually the momentum. सर पीछे इक्वेशन में तो आपने एम स्क्वायर लिखा हुआ है. ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर. No, e square minus p square is equal to m square, but e square minus p square is also equal to capital P square. Okay. सर ये छोटा p जो स्मॉल p है, It means that this. जी. Okay. Any question? Yes, sir. No, sir. Okay, then applying the operator and then you can get it. What is the value of this? You find the value of this equal to m square phi, and then again partial square phi minus m square phi equal to 0, and then partial square minus m square phi is equal to 0. Okay. सर पी म्यू की जगह पे हमने पार्शियल स्क्वायर लगा लिए. No. Okay, again let me explain it again. Okay, because this is energy and momentum and mass relation. Okay, this is energy momentum mass relation. So we can get mass from this relation. This is equal to m square. So again this is also equal to p square. It means that p square, it means that momentum, this is, you know, the momentum of special component. So this is the momentum in momentum 4 vector. So this is equal to p square p nu square. Okay, then you put it, this relation is equal to this, which is again equal to m square. So now using p mu is equal to, what is p mu g in the form of operator iota h cut partial nu, and then p nu is equal to iota h cut partial nu. Okay, so when you put the value of, साथ नेगेटिव साइन नहीं आएगा? no need of negative sign here. When you can transform in the form of, okay, you can put it this in the form of this partial this and partial okay in the form of del, then you can put it positive and negative. Okay, look this, understand? Yes sir. यस सर. सर Okay, नीचे again लिखे जो पेज का ऊपर कॉर्नर है ना वो नहीं नजर आ रहा. अब आया. अब आ गया. Okay, now you can put the value of p mu and p mu, yani contravariant and covariant values of these two operators. So you can get the value of operating on wave function phi, then putting the value of this iota h cut partial mu and iota h cut partial nu is equal to m square phi. Then iota square equal to -1, and you can get h cut square, and partial mu equal to m square phi.
So what is the value of h cut? We are using natural unit, h cut is equal to 1. So partial square equal to m square phi. Again we are using phi here. Okay, sorry, missing phi here. And then phi equal to minus. And then you get partial square plus m square into phi equal to 0. Okay. So this equation is known as Klein-Gordon equation. Partial square plus m square into phi. So here phi is the wave function, scalar wave function, function of x and t. जी अभी कोई बात आपने पूछनी हो इसमें जी? सर क्लियर है। चलिए वेरी गुड। देखिए इसमें हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि हमने जो एनर्जी मैस मोमेंटम जो रिलेशन था ना आइंस्टाइन का फेमस रिलेशन, उसको हमने यूज़ किया है और यहाँ से हमने जो है ना ये रिलेशन जो है ना ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर जो है ना वो जो फाइंड आउट किया है ना वो इक्वल टू हो गया है मैस के बराबर एम स्क्वायर। लेकिन हमें ये पता है जो ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है ना ये एक्चुअली जो आपका मोमेंटम 4 वेक्टर है ना पी स्क्वायर उसके भी इक्वल होता है। तो वहाँ से फिर हम जो है ना इसको कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट फॉर्म में लिख लेंगे, स्क्वायर है और देन इक्वल टू एम स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ना हम इसको ऑपरेटर की फॉर्म में लिखेंगे तो पी म्यू और पी, ठीक है ना, कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट। अभी जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना, जी जी सर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एच कट के ऊपर भी स्क्वायर आता है और पार्शियल स्क्वायर यू भी आता है। ना ना मैं आपको दोबारा देखें, ये जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा था ना कि ये इसके अंदर -1 आता है, 1 प्लस आता है, ठीक है। तो जब हम इसको ओपन करते हैं ना, ओपन करते हैं तब ये यहाँ पे माइनस प्लस आता है। मसलन अगर हम इसको जो है ना जब 4 वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे ना, ये जो ऑपरेटर है पार्शियल म्यू, तो इसको 4 वेक्टर में लिखेंगे तो अब ये जो है ना इसको अगर फर्ज कर लें हमने पॉजिटिव लिखा हुआ है तो दूसरे वाला क्या होगा, नेगेटिव, और अगर इसको हमने नेगेटिव लिखा हुआ है तो दूसरे वाला क्या होगा, पॉजिटिव। तो कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट, तो यहाँ पे ये जो सेकंड कंपोनेंट है इसके साथ प्लस माइनस आएगा। लेकिन जब आप इसको एज ए जो है ना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिख रहे होंगे ना फिर नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। अंडरस्टैंड जी? यस सर। यहाँ पे सिर्फ ये है कि अगर ये म्यू है कंट्रावेरिएंट है तो कंट्रावेरिएंट होगा जी, कोवेरिएंट है यहाँ पे जैसे तो कोवेरिएंट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? यस। इसके बाद जो है ना हमने क्या किया कि ये जो ऑपरेटर था ना, ये जो पहले हमने ऑपरेटर डिफाइन किया है ना, ये जो एनर्जी मैस रिलेशन था उससे हमने ऑपरेटर बनाया। इस ऑपरेटर को हमने ऑपरेट कर दिया किसके ऊपर जी, फाई वेव फंक्शन, स्केलर वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट कर दिया। जब इस स्केलर वेव फंक्शन पे ऑपरेट किया है ना तो हमारे पास जो है ना ये देखें अब हमने ऑपरेटर की वैल्यूज पुट कर दी हैं। जब ऑपरेटर की वैल्यूज हमने लगा दी हैं तो एओटा का स्क्वायर हो गया माइनस और एच कट जो है ना वो स्क्वायर हो जाएगा, और चूंकि एच कट एज हम नेचुरल यूनिट ले रहे हैं वो 1 हो जाएगा। और ये जो पार्शियल, ठीक है ना, पार्शियल जो है ना ये करली जो है ना म्यू और करली जो है ना म्यू कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट है ना, ये असल में स्क्वायर बन जाता होता है। ठीक है जी, यानी आप जो है ना जब भी कभी किसी को भी, यानी आप देखें ना मैंने आपको बताया था स्टार्ट में एक्स म्यू जो है ना, और ये जो है ना फर्ज कर ले कोई भी वेक्टर है और एक्स म्यू जो है ना कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट है। जब आपके पास एक्स म्यू मल्टीप्लाई होते हैं तो एक्स स्क्वायर बनता है। बताया था या नहीं बताया था स्टार्ट में? यस सर। बताया कोई बेसिक जो है ना डेफिनेशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जी। अच्छा, इसके बाद ये है ना ये माइनस आ जाएगा और इसको इधर ले जाएंगे तो ये जो इक्वेशन आपको लास्ट में नजर आ रही थी ये वाली, दिस इज क्लाइन-गॉर्डन इक्वेशन, वो वेरी फेमस इक्वेशन है ये क्लाइन-गॉर्डन इक्वेशन। सो यू नो दैट हाउ टू डिराइव क्लाइन-गॉर्डन इक्वेशन। ठीक है जी? यस सर, यस सर। जी इसके बारे में कोई बात पूछनी है? सर ये के स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ये कैसे लिया हमने? देखिए ना हमने इस तरह किया है कि जो आपके पास
ये जो प्रीवियस स्लाइड पे जाए ना, तो ये हमने एक जो है ना पी म्यू को ऑपरेट करके आपको बताया है। जो पीछे आपके पास क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन थी ना, वो क्या थी? पार्शियल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर होल ब्रैकेट क्लोज इनटू 5 दैट इज इक्वल टू 0। अब जो है ना यहाँ पे हमने उसका प्लेन वेव सॉल्यूशन एज्यूम कर लिया है। तो आपने जो है ना, जो जिन्होंने पीडीज पढ़ी हुई है उनको अच्छी तरह पता है कि हम किसी भी जो है ना पीडीज का जो है ना वो किस तरह से वेव सॉल्यूशन जो है ना प्लेन वेव सॉल्यूशन एज्यूम करते हैं। तो हमने इस तरह किया है कि हमने इसकी दोनों फॉर्म ले ली है ना, प्लस भी ले लिया माइनस भी ले लिया। आमतौर पे आप एक ही फॉर्म लेते होते हो, याद है प्लस वाली, एयोटा के डॉट एक्स ई रेज टू पावर एयोटा के डॉट एक्स। अक्सर आपने ये लिखा होगा फाई को। कोई बात ये बता सकता है जी ये? हाँ भाई अब्दुल बासित। हेलो। हाँ जी सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आप जो है ना पीडीज को पढ़ते हैं तो उसमें जो है ना आपने वेव सॉल्यूशन की बात करते हैं, याद होगा। नहीं सर वो तो नहीं याद। अच्छा, किसी और को याद है भाई ये? जमशेद साहब आप पढ़ा पढ़ा के थक गए बेचारे। या सर पढ़ी थी वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन। जी जी, उसमें ना आप प्लेन वेव सॉल्यूशन एक निकालते होते हो। जब प्लेन वेव सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं ना, तो फिर हम उसको फाई जो होता है हमारा जो वेव फंक्शन होता है, वो चूंकि फंक्शन ऑफ क्या है एक्स और टी है ना तो उसका जो वेव सॉल्यूशन है उसको हम लेट कर लेते हैं आयोटा के डॉट एक्स। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे हम उसकी दोनों एनर्जी की फॉर्म लेते हैं, प्लस और माइनस दोनों लेते हैं, इसलिए हम ना माइनस प्लस एयोटा के डॉट एक्स लिखेंगे। इसके ऊपर जब आप ऑपरेटर को ऑपरेट करवाएंगे ना, और ऑपरेटर आपके पास क्या है, ये एनर्जी मोमेंटम ऑपरेटर है। तो एनर्जी मोमेंटम ऑपरेटर को जब आपने ऑपरेट कराया एयोटा एच कट पार्शियल म्यू, तो जाहिर सी बात है कि वो आपके पास क्या आ जाएगा, एयोटा एच कट की जगह पे आप 1 लिख देंगे, पार्शियल म्यू आ जाएगा और ई रेज टू पावर माइनस प्लस एयोटा के डॉट एक्स। अब क्या है कि यहाँ पे जो है ना पार्शियल म्यू को जो है ना बेसिकली आप अगेन ओपन करेंगे। ये मैंने आपको बताया हुआ, क्या ओपन करेंगे कि पार्शियल आप इसको दो की फॉर्म में ब्रेक करेंगे ना, एक टाइम कंपोनेंट और एक क्या करेंगे स्पेशल कोऑर्डिनेट्स उसका, यानी एक हो जाएगा पार्शियल नॉट और एक हो जाएगा डेल आपके पास। आप जो है ना इन दोनों को जब ओपन करके ना लहदा से ऑपरेट करेंगे और फिर दोबारा से क्लोज कर देंगे, तो ये आपके पास जो फॉर्म मैंने लिखी है ना, प्लस माइनस के म्यू ई रेज टू पावर माइनस प्लस एयोटा के डॉट एक्स, ये आ जाएगी। अंडरस्टैंड जी? सर ये लास्ट वाली जो आई है प्लस माइनस के म्यू, ये चीज कैसे आई है? पार्शियल पे पार्शियल डेरिवेटिव देखो यही तो मैंने अभी आपको बताया है ना, यही तो बात अभी बता रहा हूँ। ठीक है, अभी देखें अच्छा एक तो अभी मैं समझाता हूँ आपको क्लिप बोर्ड पे, ठीक है ना। चलिए, क्लिप बोर्ड शेयर हुआ है आपके साथ? नो सर। सर अभी भी नहीं? नो सर। अब हो गया? यस यस सर। सर। अच्छा नहीं अब देखिए, ये तो फिर स्लाइड आ गई है। नहीं अब तो क्लिप बोर्ड आ शो हो रहा रहा है, है, शो हो रहा है। आपके पास स्लाइड तो नहीं हाँ है जी आ क्या? गया। अच्छा देखें, आप यहाँ से सबको नजर आ रहा है ना, ये आपने ना फाई को लिखा है, फाई आपके पास है माइनस प्लस एयोटा के डॉट एक्स। ठीक हो गया जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई। तो जब आपने ना इसके ऊपर ऑपरेटर जो है ना आपने फाई पे ऑपरेट करवाना है, तो हम ये देखते हैं कि हम जो है ना हमारे पास जो पी स्क्वायर है वो किसके बराबर है, बताएं जी। जैसे हमारे पास जो है ना ये होता है ना पार्शियल स्क्वायर, ये तो पी स्क्वायर किसके बराबर है? ठीक है, 4 कंट्रावेरिएंट।
तो आपने जब इसको ऑपरेट करवाना है ना, तो पहले मैं आपको जो है ना वो एक ऑपरेट करवा के बता रहा हूँ कि पी म्यू जो है ना एक, यानी आपने जब इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा जी, एओटा एच कट पार्शियल म्यू ई रेज़ टू पावर माइनस प्लस एओटा के डॉट एक्स। ओके, सबको नजर आ रहा है? यस सर। अब आप क्या करेंगे, एटा एच कट, इसको जो है ना आपने पार्शियल इसको लिखेंगे ये, ठीक हो गया, सही है जी। जी सर। तो इसको जब आप इसमें लिखेंगे तो आप बताएंगे कि ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो आपका k है ना, बेसिकली ये होता है k नॉट इंटू के, ठीक है, और x जो है ना आपके पास हो गया x इंटू एक्स नॉट इंटू एक्स जो है ना ये आपके पास जी। तो अब आपने क्या करना है, जब इसको ऑपरेट करना है ना इसके ऊपर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी, ये ठीक हो गया ये यहाँ तक सबको समझ आई है? यस सर। देखिए ये जो है ना थोड़ा सा इसलिए आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, कि इसको आपने ओपन करना है। जब इसको ओपन करना है ना, तो ये आपने जब इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास जो है ना ये बन जाएगा। अब जब जो है ना इसको आपने ऑपरेट करवाना है ना इसके ऊपर, तो बेसिकली जो है ना ये हमारे पास जो टाइम है ना, इसमें टाइम आपके पास जो है ना आपको नजर आ रहा है जी, टाइम वो नहीं नजर आ रहा, ठीक है ना। इसमें है के नॉट एक्स, और जो है ना ये के नॉट जो है ना ये उसका बेसिकली जो है ना टाइम कंपोनेंट तो है, लेकिन ये टी तो नहीं है ना। और इधर जो है ना एक्स आपके पास है एक्स नॉट एक्स। अब इसको आप लिख सकते हैं, ये जब इसको ओपन करेंगे ना ये आपके पास के म्यू बन जाएगा, एक्स म्यू बन जाएगा। सो इन वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा के नॉट एक्स नॉट, और ये आपके पास आ जाएगा सर एक्स नॉट नीचे वाले इंडिसेस में नहीं आएगा? कौन सा? नहीं नहीं, इसमें तो एक्स नॉट ऊपर ही लिखते हैं ना, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता, ये टी होता है बेसिकली। तो ये आपके पास के नॉट टी हो जाएगा इंटू के एक्स हो जाएगा ठीक हो गया ये। अब ये डिपेंड करता है कि आप एक्स म्यू को क्या ले रहे हो। अगर एक्स म्यू जो है ना यहाँ पॉजिटिव ले रहे हो, नेगेटिव ले रहे हो, तो उसी हिसाब से साइन आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपने ना जब इस पे ऑपरेट करवाना है ना, सपोज अब हम इस पे ऑपरेट करवाएंगे, जब ये ई की पावर में होगा, ई की पावर प्लस माइनस प्लस जो है ना ये आपके पास अब ये बन जाएगा एटा के नॉट टी प्लस के एक्स। ठीक हो गया ये। तो अब जो है ना आपने जब इसके ऊपर ऑपरेट करवा देना है, तो फिर ऑपरेट करवाने के बाद क्या हो जाएगा बताएं जी। ये जब इसके ऊपर ऑपरेट होगा ना, तो ये देखिए ये सर जी जी सर, ये एक्स नॉट को टी क्यों लिख दिया हमने? तो बेसिकली एक्स नॉट जो होता है ना, वो देखें आपके पास ये मोमेंटम जो है ना पोजीशन वेक्टर है 4, ठीक है, और इसकी ये कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट फॉर्म होगी। ठीक है, अगर आप जो है ना ये ले रहे हैं एक्स नॉट और ये एक्स ले रहे हैं, तो ये आपके पास एक्स नॉट और माइनस एक्स होगा। यस सर। चलिए, अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ये जो है ना ये क्या है, ये स्पेस एंड टाइम में ये टाइम कोऑर्डिनेट हुआ या नहीं हुआ? यस सर, टाइम डिपेंडेंट इसलिए हुआ। इसको हमने टी लिखा है ना। ठीक है।
वैसे तो आप एक्स नॉट भी रहने दें, लेकिन वो जब इधर मैंने इसको डेरिवेटिव लेना था ना पार्शियल और पार्शियल टी से, तो फिर आपने कहना था सर जी यहाँ पे तो हमें एक्स नॉट नजर आ रहा है, टी तो है ही नहीं, तो डेरिवेटिव कैसे ले लिया। राइट सर। अब आपने क्या करना है, आपने ये इसको एच कट की जगह पे आपने 1 पुट कर देना है, ठीक हो गया, और एटा उसी तरह रहेगा जी। और अब आपने ना इसको ऑपरेट कराना है, पार्शियल नॉट इनटू एच को किसके ऊपर ऑपरेट कराना है, माइनस प्लस एटा के नॉट टी प्लस के एक्स। ठीक हो गया, ये बात समझ गए हो या नहीं। यस सर। जी यस सर। सर। अच्छा अब ये देखें, ये बेसिकली क्या है, ये वेक्टर ऑपरेटर है ना, ये ध्यान में रखें, ये क्या है, ये 4 वेक्टर ऑपरेटर है। क्या है ये, इसको हम कहते हैं 4 वेक्टर ऑपरेटर। अच्छा, तो जब आप इसको ऑपरेट करवाएंगे तो ये जो पार्शियल नॉट है ना, ये एक दफा इस पे ऑपरेट होगा और एक डेल इस पे ऑपरेट होगा, और वेक्टर एज इट इज ही रहेगा। आपको पता है ना वेक्टर उसी तरह रहता है। तो एटा आ जाएगा हमारे पास, और ये आ जाएगा पार्शियल नॉट ई की पावर माइनस प्लस एटा के नॉट टी प्लस के एक्स। नजर आ रहा है जी आपको। जी सर। अच्छा, इसके बाद कॉमा लगाएंगे, और ये पार्शियल और पार्शियल एक्स म्यू जो है ना, ये आपके पास आ जाएगा, और इधर जो है ना आपके पास आ जाएगा ई की पावर माइनस प्लस एटा के नॉट टी प्लस के एक्स। ये बात सबको समझ आ रही है, और यहां से ब्रैकेट क्लोज कर दें। नो सर। क्यों जी? सर जी तो ये क्या नहीं समझ आया, पूछे। तो लास्ट वाला देखिए ना, ये बेसिकली आपके पास ये क्या है, ये वेक्टर, एक वेक्टर है ना, ये 4 वेक्टर है। तो अब वेक्टर में ना ये पहले वाला कंपोनेंट इस पे ऑपरेट होगा एक दफा, तो ये एज के अंदर ले जाएं, ठीक है, जी। तो समझिए। इसी तरह ये वाला जो है ना डेल के साथ अंदर चला जाएगा, बारी बारी दोनों जाएंगे ना, एक दफा ये इसके साथ ले आए और इसके साथ ले आए। अब आप इसको ऑपरेट करवाएं, तो ये पार्शियल और पार्शियल जो है ना टी है ना, ये पार्शियल नॉट किसके बराबर है, पार्शियल और पार्शियल टी के बराबर है। तो जब आप इसको इसके डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, डेरिवेटिव लेंगे, तो यहां से क्या कॉमन आएगा जी, नीचे डेरिवेटिव में क्या आएगा, नीचे एओटा के नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इधर देखें ना, जब इसका आप डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा, ये डेरिवेटिव लें जी, क्या आता है डेरिवेटिव इसका। चले, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पहले वाले का क्या आ जाएगा, एटा तो पहले ही बाहर है, और इसमें हमारे पास आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस प्लस एटा के नॉट, और ई की पावर जो है ना आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस प्लस एटा के नॉट टी प्लस के एक्स। ठीक है जी, ये सिंपल डेरिवेटिव लिया है, आपको पता होना चाहिए। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट में हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो नेक्स्ट में हमारे पास जो डेरिवेटिव है ना, ये पार्शियल और पार्शियल एक्स म्यू है। तो ये बेसिकली जो है ना आपका क्या है, ये यहाँ पे इसको आप ना, ये पार्शियल और पार्शियल एक्स म्यू को बेसिकली डेल लिखना था हमने, डेल, ये डेल आना चाहिए था। ठीक है जी, क्योंकि हमने इसको ओपन किया था ना जब टी म्यू को, तो ये आपके पास क्या आ गया था, ये था, और यहां से हम जो है ना इसको ओपन करते हैं तो ये डेल आता है। ठीक है,
तो एक्चुअल में यहाँ पे इसको डेल लिखना चाहिए था। यहाँ पे इधर देखें सब लोग, यहाँ पे हमने क्या लिखना था, इसको यहाँ पे डेल लिखना था। ठीक है जी, ये देखें ना ऊपर डेल ही था ना यहाँ पे, तो यह डेल ऑपरेटर आ जाएगा यहाँ पे। और ये आपको पता है स्पेस में जो ऑपरेटर होता है हमारे पास। अब जब आप इसको ऑपरेट करवाएंगे डेल को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बोले जी, माइनस प्लस के आ जाएगा, एटा आ जाएगा, और ई की पावर माइनस प्लस एटा के नॉट टी प्लस के एक्स, ये आ जाएगा। ठीक हो गया जी ये, बोले भाई। सर ठीक हो गया। अच्छा अब मुझे ये बताएं, ये जो मैंने इसको अभी सर्कल कर रहा हूं, तो ये मेरे पास क्या चीज है जी, ये वाली यही चीज है ना जो ये लिखी हुई है, ऐसा नहीं है? क्यों जी? तो इसको वापस इसकी असल फॉर्म में लिख दें। Yes, sir, we can write as. और इसको फिर जो है ना आपके पास ये अपनी वापस असल फॉर्म में चला जाता है। अब आपने इसमें से क्या कॉमन ले लेना है जी, ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर दोनों में क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो ये जब आप कॉमन ले लेंगे तो इधर आप एटा स्क्वायर भी कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा ठीक हो गया ये। बोले जी, क्योंकि सर ये एटा कॉमन लास्ट ले, नहीं समझ आई, लास्ट लाइन आपने लिखी है सर, ये माइनस कॉमन लिया है, अच्छा प्लस उधर से भी नहीं, होता है Iota, योटा iota एटा by माइनस, iota square minus 1 हो गया. अच्छा अब अंदर से ना माइनस प्लस भी कॉमन ले ले तो प्लस माइनस हो जाएगा, यस और ये रह गया के नॉट Yes. प्लस के ई की पावर माइनस प्लस एटा के डॉट एक्स। ठीक है, अब मुझे बताएं ये के नॉट स्क्वायर प्लस के, ये किसके इक्वल है जी? और इसमें सॉरी हमने गलती की है, यहाँ प्लस नहीं है, कॉमा है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या था, कॉमा था। ठीक है, ऊपर देखे ना, ये आपका जो पहले जो है ना, इसमें हमने नीचे लिखते हुए दूसरे पेज पे जाते हुए गलती कर लिया, यहाँ पे कॉमा है, देख ले। जी सर. चलें जी, तो यहाँ पे अब आपके पास ये के नॉट प्लस के किसके इक्वल हो गया बताएं जी? के म्यू के सर बराबर हो के गया ना? म्यू के. के म्यू के, Yes. यस सर। तो यही हमने वहां लिखा हुआ है, देखें उस इक्वेशन में। अब समझ आ गई सबको? यस सर। Yes sir. सर अब इधर भी प्लस नहीं ना आता, के नॉट के और के दरमियान बस कॉमा ही आता है। नीचे तो कॉमा ही आएगा ना, ऊपर किधर? सर सेकंड लास्ट लाइन पे जिधर प्लस भी आपने लगाया वो उधर प्लस नहीं आता, साथ बस कॉमा ही आता है, तब के म्यू लिखेंगे। जहाँ कुछ भी ना हो वहाँ प्लस ही होता है. चले, ये जो एक जो है ना लाइन मैंने लिखी है ना, आपको नजर आ रही है जी?
अच्छा, ये जो सिंपल एक लाइन थी इसको हमने ड्राइव किया है जी। अच्छा, अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर हम इसको, अभी तो हमने पी म्यू को ऑपरेट किया है ना, और पी म्यू को ऑपरेट करने के बाद हमने ये हासिल किया है, तो जब पी न्यू को जो ना आपका कंट्रा वेरिएंट था, ये को वेरिएंट को भी ऑपरेट करेंगे अगेन। ठीक है, तो ये बात समझ आ रही है Yes, sir. सबको या नहीं? यस सर, आ रही है आ रही है। Yes, देखिए sir. ये मैंने ना इसको 2 पार्ट्स में किया है। ये आप अभी मैंने सिर्फ एक को ऑपरेट किया है। अब जब कंट्रा वेरिएंट को, जब को वेरिएंट को भी ऑपरेट करेंगे ना, तो को वेरिएंट जब इस पे ऑपरेट होगा तो आपके पास जो है ना अगेन जो है ना इस तरह का जो है ना आ जाएगा, वो के कंट्रा वेरिएंट आया ना के, तो वो को वेरिएंट आ जाएगा। तो कंट्रा वेरिएंट को वेरिएंट मिलके क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे जी? के के स्क्वायर। स्क्वायर बन के जाएगा। स्क्वायर Yes, sir. हाँ। यस ठीक है, और वो चूंकि साइन उसका चेंज हो गया ना, बात समझ गए हो? ये माइनस क्यों आया है, किसी को पता चला है जी या नहीं? सर ये वाला के स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और 5 जो है ये पीछे वाली क्वेश्चन से आया है। जी क्या कह रहे हैं? सर नेक्स्ट स्लाइड में जो के स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर है, ये न्यू हम ले रहे हैं कि ये पीछे वाले से ही? ये वाली जो क्वेश्चन नंबर 3 आपने लिखी है। ये तो हमने प्रीवियस जो पढ़ रहे हैं ना, देखें हमारी जो है ना अभी तो वही इक्वेशन चल रहा है, उसमें हमने क्या किया है, उसका प्लेन वेव सॉल्यूशन निकालने के लिए जा रहे हैं। आगे समझ बात? अब हमने उसमें क्या किया है, लेट किया है फाई को हमने लेट किया है ई रेज टू पावर, ठीक है, माइनस प्लस एटा के डॉट एक्स। अब उस पे जो है ना आपके पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, इक्वेशन ये थी, देखें सब लोग इधर देखें, ये देखें, ये इक्वेशन थी आपके पास, ये इक्वेशन आ गई समझ जी? अच्छा, ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन के लिए फिर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर प्लेन वेव सॉल्यूशन के लिए जी। तो अब जो है ना हमने क्या किया कि उस प्लेन वेव सॉल्यूशन को, जारी बात है आपने क्या किया, फाई की जगह पे ये पुट कर दिया ना, ये वाला ई रेज टू पावर माइनस प्लस एटा के डॉट एक्स, ये फाई की जगह पे क्या किया है, वहां सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने। ठीक है जी, और जब सब्स्टिट्यूट किया है ना, तो अब आपने उसको ऑपरेटर को ऑपरेट करवाना है पार्शियल स्क्वायर को। जब पार्शियल, ये जो है ना आपके पास यहाँ पे पार्शियल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर फाई इक्वल टू 0, ये देखिए यहाँ पे ये चीज है, ये वाली। चले हम यहाँ से चलते हैं, ये वाली इक्वेशन से आप ले लें जो ऊपर है, पी स्क्वायर पी न्यू फाई इक्वल टू एम स्क्वायर फाई। ठीक हो गया जी? इधर देखें सब लोग, नजर आ रहा है जी क्लिप बोर्ड? यस सर यस सर। यस सर। देखिए हम ना यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था ये वाला, ये आपको याद है ना ये, और इसी को हमने हल Yes, sir. करते हुए हमने ये डिराइव की थी, ये हमने क्या किया था, लाइन गार्डन इक्वेशन डिराइव कर ली थी। ठीक है जी? क्लियर। अगर आप फाई को ये ले लें ई रेज टू पावर माइनस प्लस एटा के डॉट एक्स, यानी प्लेन वेव सॉल्यूशन की फॉर्म में ले लें, तो अब आप जो है ना इस इक्वेशन पे जाएं, तो ये आपके पास पी स्क्वायर बन गया जी, फाई इक्वल टू एम स्क्वायर फाई।
इसमें जो है ना आपके पास जो पी स्क्वायर है वो बराबर है ये, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया ये, ओ सॉरी ये सही है। ये यानी इक्वल होता है जी। तो अब आपने ना इसमें से मैंने आपको सिंपल एक ऑपरेटर ऑपरेट करके बताया। मैंने कहा ये ऑपरेटर जो है ना अगर आप 5 पे ऑपरेट करें ना 5 पे, ठीक है जी, तो आपको आंसर क्या मिलता है जी, बताएं जी। ऑपरेट करने के बाद क्या आंसर मिला? प्लस माइनस माइनस एक अल्ट्रा वेरिएंट और ये अगर 5 की वैल्यू जो है। ठीक हो गया ये। यस सर। अगर आप दूसरा ऑपरेटर ऑपरेट करें तो फिर क्या होगा, फिर क्या आएगा जी? के जो है कोवेरिएंट हो जाएगा। ठीक हो गया ये। सही है, बात समझ गए या नहीं? जी सर। क्या सर आगे से? तो यहाँ से जो है ना ये आपके पास जो आ गया है ना, ये इसकी जो है ना आइगन वैल्यूज है उस आइगन फंक्शन की। आइगन फंक्शन जो है ना जो ऑपरेटर है हमारा मोमेंटम एनर्जी मोमेंटम। अब इसको जो है ना आप इस इक्वेशन में ऊपर जो है ना ये वाली इक्वेशन जो है जो सबसे ऊपर ये इक्वेशन मैंने लिखी है ये वाली, इसमें पुट कर दें। तो जब इसमें पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये किसके इक्वल हो गया जी, ये बताएं जी। ये के स्क्वायर आ जाएगा ई की पावर बेटा के डॉट एक्स, ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस माइनस के स्क्वायर 5। सही हो गया। जी सर। ओके, देन यू कैन गेट के स्क्वायर इक्वल टू 5 इक्वल टू एम स्क्वायर 5 in plus minus, then again equal to plus minus k square minus m square equal to 5. Okay, so this is homogeneous equation. So if this is homogeneous equation, then phi not be equal to 0, so its coefficient must be equal to 0. Yes sir. Okay, so next if you put this value equal to 0, it means that k square minus m square equal to 0. Okay, skip the sign plus minus. We can also write it in the form of positive and negative energy in the later on. So here you can skip the sign of plus minus. Okay, then k square minus m square equal to 0. So here what is the value of k square? It means that k nu equal to k naught into k naught square minus it means that this into this minus sign, and then you k, and then you get it equal to k naught ka square minus k. Okay, you can put it plus sign and minus sign here. Okay, k square. So this is equal to k naught square mean E energy square minus k square. Back to the slide. Okay. Okay, you got this point. So you can get k square minus m square into phi equal to 0.
So the coefficient k square minus m square is equal to k naught square minus k square and then minus m square. So you can write it k square, it means that plus minus energy momentum is equal to this k naught. The value of k naught is equal to energy. It means energy of the rest mass of the particle. So this is equal to plus minus equal to k square plus m square. So you get the value of this k naught. Any question, Ji? No, sir. Okay.